Europe is planning to end Russian energy dependence by the end of this year. And if that happens, Russia will have to find new buyers, which means new pipelines, new payment systems, new contracts, and none of this will happen overnight. So Vladimir Putin may or may not accept it, but his economy is certainly hurting. Does that mean the sanctions are a complete success? The answer is no. Like we've said before, war is not about military victories. War is also about achieving political goals. The same logic applies to sanctions. Sanctions are not about crippling a country, they're also about achieving the overall political goal. What was the goal in this case? To stop the war. Has the West achieved that? Well, not yet. They have stopped Russia's economic growth, but not the war in Ukraine. In fact, Russia is intensifying their strikes, taking more cities, issuing more threats. So who exactly are the sanctions hurting? The rest of the world. Let's focus on two important commodities, oil and food. Both commodities are becoming more expensive every day. Western sanctions are making oil expensive. Russia's Black Sea blockade is making food expensive. And the result is this: everybody is suffering. In Europe, gas prices are up 40%. In Africa, wheat prices are up 60%. In South Asia, countries are running out of foreign exchange. And in the US, gasoline has topped $5 per gallon. In other words, the sanctions have globalized economic pain. If Russia goes down, it won't go alone. The ripples will be felt across the world, and this raises two questions. Number one, why must Nepal or Ghana or Egypt pay the price for Russia's war? And number two, is it time to rethink economic sanctions? For the first question, you can rather blame globalization. Think back to the 2008 recession. The housing bubble burst in the US. American banks messed up their policy, yet the entire world suffered. That is the downside of globalization. The good times are globalized, but so are the bad times. Which brings us to the second question: should we rethink sanctions? After all, when have sanctions worked? Not against North Korea, not against Iran, not against Venezuela, and now not against Russia. In fact, sanctions can be counterproductive. They can galvanize the public. Take Iran or North Korea, for instance. Western sanctions are a unifying force for these countries. Leaders use sanctions to rally their public. That's one reason why sanctions fail. The other reason is exemptions. Most sanctions leave out certain commodities. In Russia's case, they've left out energy because it does not suit the West. The West may have agreed to phase out Russian energy, but other countries can still buy it. For example, India and China have increased Russian energy purchases. It may take time, but gradually the oil money is going to return to Russia. And that is why sanctions fail, because they're always half-hearted. Sort of like the middle path, a little less than military intervention, but more than condemnation. WION is now available in... सेंटिमेंट्स हर्ट होना मैं समझता हूँ, हम भी उनकी कदर करते हैं, आपसे ज्यादा करते होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। लगता नहीं है कि आपको एक अमन पसंद जब आप बात करते हैं, कम्युनल हार्मनी खराब होती है, आप अगर वैसी करेंगे तो वो शोभा दे रहा था आपको, ऐसी मतलब लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने का कि सर कलम कर देंगे। आपको लगता नहीं था वो भड़काने वाला भाषण था? नहीं, एक्चुअली वो जो स्पीच थी वो इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी बात ठीक नहीं है। अगर इतनी दिखाई गई तो ये ठीक नहीं है। लेकिन आधे में तो आपने बोला ना, आधे में आपने बोला। जी जी, आपको बोलना चाहिए था, ये मुझे बताइए। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे जज्बात मजरू हुए हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन भी आंख बंद करके थी तो जज्बात की बात है, हमारे नबी का मामला तो ऐसा क्या जज्बात सोकत कहेंगे कि आपको गलती हुई है? आपको नहीं कहना चाहिए। मैंने तो ये खास तौर पे किसी कम्युनिटी के लिए नहीं कहा, लेकिन पर्टिकुलर उन शख्सों के लिए कहा। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी कम्युनिटी के जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हुए हैं तो मैं उनको तहे दिल से माफी चाहता हूँ। और इसके अलावा जो भी देखिए होता क्या है कि जब आप कहते हैं कम्युनिटी, आप देखिए आप जिस तरीके से पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बोलते हैं, फिर किसी शख्स का नाम लेते हैं, हर्ट होना ठीक है, आपने उसके लिए एहतजाज किया, वो भी ठीक है, आपने कर दिया। उसके बाद आपको ये भाषण देने की क्या जरूरत थी, भड़काने की क्या जरूरत थी, ये कहने की क्या जरूरत थी कि धड़ अलग कर देंगे, मगर उनका गला नहीं पकड़ा हम उनके गले काट देंगे? आपको लगता नहीं कि ये गलत था? बिल्कुल नहीं गलत था, लेकिन आप इसको दूसरे वे में अगर लेंगे तो तभी आपको दिखेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। हमारी तो डिमांड थी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेशर बनाने के लिए, और जज्बातों में आके हमसे ऐसा हो जाता है।
जज्बातों की बात थी, सेंटिमेंट। देखिए, अगर आपने कहा जज्बातों में, वही दूसरा फिरका भी कहेगा, वो कहेगा हमने भी जज्बात में आके कह दिया। ये तो कहीं थमेगा नहीं सिलसिला। हर कोई कहेगा कि मैंने जज्बात में आके बोल दिया। किसी वो तो हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे जज्बात में आके। तो उससे आपको लगता नहीं कि हम आग लगाएंगे अपने ही इसमें, जहां हम एक साथ यकजाहती से रहना चाहिए, हम अपने ही देश में, अपने ही कस्बे में आग लगाएंगे? आपको लगता नहीं कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था? आप एक अंजुमन इस्लामिया को के मेंबरान हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करना चाहिए था, ना कि मस्जिद के बाहर भड़काने वाला भाषण देना चाहिए। नहीं, आपकी बात से मैं वाकिफ हूँ, आपकी बात से मैं जो मुतफिक हूँ, लेकिन इस बात से भी मैं गुरेज नहीं करता हूं कि अगर किसी से गलती हो जाती है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की देरी और गलती के बाद रिएक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन की देरी हुई, तो ऐसे नताइज अक्सर देखने को मिलते हैं। देखिए, एफआईआर लॉन्च हुआ है, जिन्होंने बयान दिया उनके बयान के साथ कोई भी अच्छा शख्स नहीं होगा, क्योंकि हम तो हमेशा हिमायत नहीं करेंगे कि कोई किसी को भी आहत करे, किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। हम किसी के साथ, वैसे लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे। लेकिन उसके एफआईआर लगा है, लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, पुलिस है, क्या हम अपने हाथ में ले लेंगे, आग लगा देंगे? असल में एफआईआर लगने के बाद भी वो ऐसे ही खुलम खुला रिपोर्टें चल रही थी, अभी भी सोशल मीडिया पे कार्रवाइयां हो रही थी, उन चीजों को बंद नहीं किया जा रहा था। इसी सिलसिले में तो हमने प्रोटेस्ट की। अब प्रोटेस्ट ही हमारे जज्बात थे, हम सिर्फ जज्बात का मुजाहिरा कर सकते थे यहाँ पे, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके रहती, हमारे जज्बातों की कदर न करी, तो ऐसी चीजें आ जाती हैं। आदिल साहब, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आपको लगता है कि आपको गलती हुई है? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, मेरा मजहब मुझे यही तालीम देता है कि अगर किसी के मजहब को मैंने तकलीफ पहुंचाई, मैं सबसे पहले उनसे माफी मांगता हूं। लेकिन इसके अलावा मैं फिर से आपसे ये कहना चाहता हूं, मैंने किसी मजहब को टारगेट नहीं किया, लेकिन मैंने किसी मजहब को टारगेट नहीं किया। मैंने उन शख्सों को, देखिए मैं आपको ये बात कहूं, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि वो जो है कोई नुपुर शर्मा या कोई भी जिनका भी मैंने नाम लिया, वो हिंदू भी नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू भी हमें ये नहीं सिखाता कि किसी के नबी के ऊपर जो है वो गुस्ताखियां करे। मैं उनको इंसान ही नहीं समझता। तो इस सिलसिले में अगर मैंने जज्बात में कुछ कह दिया, अगर किसी के मजहब को जो है ठेस पहुंची है, मैं उनसे माफी चाहता हूं। लेकिन अगर वो इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते तो कानून को उनके ऊपर पकड़ बनानी चाहिए। वरना मैंने आज अगर ऐसा किया, कल को मुझसे बढ़ के कोई और भी ऐसा कर सकता था, इसकी जिम्मेदारी फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे ही आ सकती है। हम आपकी बात से बिल्कुल करते हैं कि आपने जो कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखिए, वही कह रहा हूं, वही मैं शुरू से ही कहने जा रहा हूं, जो किसी के भी मजहब के खिलाफ बोलेगा वो अपने मजहब को भी फॉलो नहीं करता। उसी तरह से मैं ये भी कह रहा हूं कि हमें भी, जैसे चाहे वो सिख हो या मुसलमान हो, वो भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं ले सकता, वो भी अपने मजहब के खिलाफ जाएगा। मैं आपसे यही कहता हूँ कि ये एक जज्बात के अंदर दी हुई बात थी। नहीं, हमने अगेंस्ट क्या बोला है, आप ये कहें। ये एक जज्बात के अंदर दी हुई बात थी, लेकिन किसी मजहब को टारगेट नहीं किया गया। हमने अगेंस्ट बोला क्या है? बस एक बात आपसे सवाल है, हमने अगेंस्ट बोला क्या है? अभी आपसे, लेकिन किसी मजहब को टारगेट नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हमारे ताल्लुकात हिंदू भाइयों से भी, सिख भाइयों से भी, हर एक के साथ बहुत अच्छे हैं। एक मिनट देखो, आप पुट ना करें इनके माउथ में अपने वर्ड्स ताकि ये कहें। देखिए, मेरी बात सुने, आपसे मैं पूछ रहा हूँ इन्होंने अगेंस्ट क्या बोला? मैं आपको शायद याद दिला दूं, कुछ लोगों ने वीडियोस भी देखी हो, मैं आपको ये याद दिला दूं, मैंने किसी के मजहब को टारगेट नहीं किया। हाँ, मैंने ये कहा था कि गाय का पेशाब पीने वाला, या जी क्या कहते हैं, गोबर के अंदर नहाने